नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। होली फेथ पब्लिक स्कूल एंड पीयूसी कॉलेज ऑफ साइंस में सैयद जाफर परवेज अतहर इसरो के रिसर्च साइंटिस्ट का सम्मान कार्यक्रम। आंगनबाड़ी केंद्रों की रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी जाएगी, जस्टिस प्रकाश ए बनसोड़ी ने कहा। भाजपा मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है, जबकि मैं गरीब, दलित और सामाजिक न्याय का समर्थक हूं, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। बेंगलुरु भारत में गेमिंग और एनिमेशन उद्योग का नेतृत्व करेगा, प्रियांक खरगे ने कहा। भारत बंद के विरोध में जीतन राम मांझी और किरोड़ीलाल मीणा जाने चिराग और मायावती का रुख। मंकी पॉक्स को लेकर सरकार अलर्ट, एम्स दिल्ली ने जारी किए फैसले। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के प्रसिद्ध होली फेथ पब्लिक स्कूल एंड पीयूसी कॉलेज ऑफ साइंस में सैयद जाफर परवेज अतहर इसरो के रिसर्च साइंटिस्ट का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान रहे। इस कार्यक्रम में सैयद जाफर, जो इसरो के रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, वहां होली फेथ पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं और उन्होंने अपने टीचर्स के मार्गदर्शन पर आगे बढ़ा के इसरो को ज्वाइन किया, जिस पर स्कूल प्रशासन ने उनका सम्मान किया। इस मौके पर अतिथि के रूप में केपीसीसी के अल्पसंख्यक इकाई के राज्य कार्यदर्शी मोहम्मद तनवीर खान, सैयद समीउद्दीन, बीदर डीसीसी के उपाध्यक्ष सैयद खमरुद्दीन, डोरलाइन पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष जमील, लिली रोज पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष रुमान आदि का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर होली फेथ पब्लिक स्कूल एंड पीयूसी कॉलेज ऑफ साइंस अध्यक्ष खादरी शरीफ और प्रिंसिपल तलत फातिमा और विद्यार्थी आदि उपस्थित थे। इस मौके पर मोहम्मद फिरोज खान सहित अन्य अतिथियों ने बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। If madam provide me opportunity to show some presentation, I will show how ISRO and our team is working for the society and everything. So I want to know tell everyone that how many people want to do great thing. See, in life, if you want to become success, you need to become great. So how to become great? So many of our students, they have lots of questions in their mind. Yes, sir. Clear their questions also. So I will tell you, first most important thing to do everything is learning. Learning gives you creativity. You know, if you learn, you will get creative. If you become creative, it will give you knowledge. Knowledge is like ocean. Like how much knowledge if you take, it is less. It will like in every homes or every state you will get pakka doctor. Because Bidar is our education system in the Bidar is rising very highly. So we are going good education, but we are focusing to either to doctor or either to engineer. But other than that, there are many fantastic streams you can choose. And most best partner in your school life only you need to set what you want to become. And it is not like if you are saying your friend become scientist, you are become doctor, you are become something, someone become something. Don't follow any one of you. Decide what you want to become, you decide yourself. First your passion and your interest should be there. Anyhow your best passion, your goal and your hard work, that work will pakka give you a handsome salary, no doubt for that. So always decide your goal, what you want to become. And there, see, at our time, we used to struggle for our time. Our madam used to struggle too much for getting faculties for us and books and all those things. But now you are having a number of sources to studies. At our time, we need to go to book depots and buy books. But that time we don't have books also. Limited books they will come and limited books they will sell. But you are now having social media, so internet and all those facilities. Now the generation is coming to AI. Anyone know AI? What is AI? Yeah. Artificial. From that you can learn and know. So second thing, always think like if you achieve your goal, don't think that I should earn money and everything. That will come you. Like once upon a time, they are like people don't have sufficient money also, but they used to survive. But you should aim that how should
my thing will help the society. Like I am in ISRO, how should I help the society? And if I am in ISRO, how I am helping the society? How I am helping the education? How I am helping the healthcare? How should I help all those things? So that mentality you need to keep. So all the best to all the students. Hope you have better future for your future. Thank you everyone. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश बीदर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रकाश बंसोड़े ने कहा कि बीदर जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा करने पर वहां अव्यवस्थाएं उचित नहीं है तथा कुछ आंगनबाड़ी केंद्र बंद है तथा हाई कोर्ट को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट वह बुधवार को बीदर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय कक्ष में बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। 20 अगस्त को मालेगांव आंगनबाड़ी केंद्र 2 और 3 में बच्चों की उपस्थिति का कोई उचित रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। यहाँ बच्चों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है, अलग रसोई घर और भंडारण कक्षा नहीं है। उपस्थिति के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे उपस्थित नहीं थे, वे सरकार द्वारा शुरू किए गए एलकेजी में थे और यूकेजी। आंगनबाड़ी शिक्षक ने कहा कि वे कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। मालेगांव आंगनबाड़ी केंद्र 3 में सहायिका उपस्थित थी और आंगनबाड़ी शिक्षक अनुपस्थित थे। आंगनबाड़ी देवराज अरस केंद्र 310 शाहगंज बीदर में आंगनबाड़ी शिक्षक और सहायिका उपस्थित थे। कुल 45 बच्चों में से 7 बच्चे उपस्थित थे। यह आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में स्थित है। 45 बच्चों के लिए सिर्फ एक शौचालय है, अलग रसोई घर होगा लेकिन भंडारण कक्ष नहीं होगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है। 21 अगस्त को सुबह 10:20 पर 10 से 30 मिनट तक आंगनबाड़ी केंद्र लंगर गली, आंगनबाड़ी केंद्र शाहगंज, आंगनबाड़ी केंद्र 292 और लेबर कॉलोनी आंगनबाड़ी केंद्र 311 बीदर ने बताया कि ये तीनों आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी जगदेश्वर, आकाश, प्रीति, नागराज, ईरमा, जीवन, योहान और अन्य उपस्थित थे। देखते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को भाजपा पर उनके खिलाफ निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया, जबकि वह हमेशा गरीब, दलित और सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे हैं। उनकी यह टिप्पणी राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत उनके खिलाफ जांच और भ्रष्टाचार के आरोपों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति देने की पृष्ठभूमि में आई है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय देवराज उर्स को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए सिद्धरामैया ने आरोप लगाया कि भाजपा के लिए गरीबों, पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ रहना असंभव है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के राज्य मुख्यालय में कहा, कांग्रेस हमेशा महिलाओं, गरीबों, अल्पसंख्यकों और दलितों की समर्थक रही है, क्योंकि मैं समाज में असमानता के खिलाफ हूं और गरीबों का समर्थक हूं। इसलिए भाजपा मेरे खिलाफ है और वह सब कर रही है जो नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए वे मेरे खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।
कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने सोमवार को कहा कि भारत में गेमिंग और एनिमेशन का भविष्य उज्जवल है और बेंगलुरु इसमें अग्रणी बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी एवीजीसी XR क्षेत्र में स्टार्टअप्स और SME को समर्थन देने और राज्य को एवीजीसी के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे खरगे ने कहा, सरकार धन मुहैया कराने के लिए तैयार है और किसी के साथ भी साझेदारी करने को तैयार है। वास्तव में एवीजीसी उद्योग को गेमिंग एक्सेसरीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के द्वार के रूप में देख रहा हूं, इसलिए इसमें विनिर्माण के संबंध में समानांतर अर्थव्यवस्था बनाने की क्षमता भी है। मंत्री ने GAFX 2025 के लिए थीम और पोस्टर का अनावरण किया, जो गेमिंग, डिजिटल मीडिया और मनोरंजन उद्योग में भारत की सबसे उत्सुकता से प्रतीक्षित सभाओं में से एक का छठा संस्करण है, जो 27 फरवरी से 1 मार्च 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। मुदियानूर में 14 अगस्त को हुई एक सरकारी स्कूल शिक्षक की हत्या के सिलसिले में मूलबागल पुलिस ने 4 किशोरों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोलार के पुलिस अधीक्षक निखिल बी के अनुसार घटना पिछले बुधवार शाम की है, जब मूलबागल टाउन के सोंकू लेआउट में 46 वर्षीय दिव्याश्री के घर में लूटपाट के प्रयास में अपराधियों ने उनका गला रेत दिया। घटना के समय उनकी बेटी ही घर पर थी और उनके पति पद्मनाभ शेट्टी बाहर गए हुए थे। दिव्याश्री की आवाज सुनकर घर की पहली मंजिल पर मौजूद उनकी बेटी निशा बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी मां खून से लथपथ पड़ी है। इसके बाद बदमाशों ने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह बचकर भाग निकली और उसे एक कमरे में बंद करके उसके पिता को फोन किया। इसके बाद बदमाश मौके से भाग निकले। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान 20 वर्षीय रंजीत कुमार निवासी तिरुमनाहल्ली, 18 वर्षीय युवराज निवासी कोंडानहल्ली और 18 वर्षीय शहीद पाशा निवासी नांगल्ली के रूप में हुई है। सेंट्रल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल राम ने कहा, पुलिस अपराध में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठन आज भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतर पड़े हैं। भारत बंद के इस आह्वान को कई राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दिया है, वहीं कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध भी किया है। केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा कि वे इस भारत बंद का समर्थन नहीं करेंगे। कुछ खास लोग इस आंदोलन को अपने स्वार्थ के लिए चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आर्थिक तौर पर संपन्न कुछ दलित झूठी बात करके रिजर्वेशन को खत्म करने का भ्रम फैला रहे हैं। कई दलित समुदाय के लोग अभी भी अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। मांझी ने कहा, जो लोग आज बंद का समर्थन कर रहे हैं वे वही हैं जिन्होंने पहले भी आरक्षण के नाम पर अपनी स्थिति को मजबूत किया और बाकी दलित समुदाय को पीछे छोड़ दिया। मांझी ने कहा कि कुछ दलित आरक्षण का फसदा उठाकर बेहतर जीवन जी रहे हैं। एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इस बंद को हमारा पूरा समर्थन रहेगा। चिराग पासवान ने कहा कि जब तक समाज में SC और ST के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा है, तब तक SC/ST को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान नहीं होने चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि केवल कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए SC/ST को गुमराह कर उन्हें भड़काना चाहते हैं, यह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि क्रीमी लेयर पर विचार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और कहा कि हम किसी तरह की क्रीमी लेयर को लागू नहीं करेंगे। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि क्रीमी लेयर पर
मैं सुप्रीम कोर्ट की भावना के साथ हूं। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस आदि राजनीतिक दलों पर निशाना साधा है और बीएसपी कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि वे अनुशासित व शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद में शामिल हो। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे भारत बंद के तहत सरकार को ज्ञापन देकर संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण में हुए बदलाव को खत्म करने आदि की मांग करें। उन्होंने कहा SC/ST के साथ ही ओबीसी समाज को भी आरक्षण का मिला संवैधानिक हक इन वर्गों के सच्चे मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनवरत संघर्ष का परिणाम है, जिसकी अनिवार्यता व संवेदनशीलता को भाजपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियां समझकर इसके साथ भी कोई खिलवाड़ न करे। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहे मंकी पॉक्स के मामलों को देखते हुए एम्स दिल्ली ने एडवाइजरी जारी की है। एम्स दिल्ली ने मंगलवार को संदिग्ध एमपॉक्स रोगियों के इलाज के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही क्वारंटाइन में उपचार के लिए 5 बिस्तर भी आवंटित किए। मानक संचालन प्रक्रिया SOP में कहा गया है कि संदिग्ध मरीजों को तुरंत क्वारंटाइन क्षेत्र में रखा जाना चाहिए ताकि अन्य मरीजों और कर्मचारियों के साथ उनका संपर्क कम से कम हो। केंद्र सरकार द्वारा संस्थान ने एक बयान में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एमपॉक्स प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का मामला बताते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, जिसमें रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने, शीघ्र पहचान करने और आगे प्रसार को रोकने के लिए कड़े संक्रमण नियंत्रण उपायों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। एम्स SOP दस्तावेज के अनुसार एमपॉक्स एक वायरल पशुजनित रोग है जिसके लक्षण चेचक के रोगियों में पहले देखे गए लक्षणों के समान है। हालांकि चिकित्सकीय रूप से यह कम गंभीर है। दस्तावेज में एम्स के आपातकालीन विभाग में ऐसे मामलों से निपटने के लिए आवश्यक कदमों की रूपरेखा दी गई है। क्या है लक्षण जानते हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार आगमन पर बुखार, दाने या एमपॉक्स के पुष्ट मामलों के संपर्क के इतिहास वाले रोगियों को तत्काल आकलन के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए। इसमें बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, लिम्फ नोड में सूजन, ठंड लगना, थकावट और त्वचा के घाव जैसे प्रमुख लक्षणों की पहचान करने के लिए भी कहा गया है। दस्तावेज में कहा गया है कि एमपॉक्स के मामलों को अलग रखने के लिए AB7 वार्ड में 5 बिस्तर निर्धारित किए गए हैं। SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठन आज भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतर पड़े हैं। तेलंगाना के जहीराबाद में भी बीएसपी के बसपा जिला अध्यक्ष शशिकांत गिरकला के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। बुधवार को भारी बारिश के दौरान भी धरना स्थल से प्रदर्शनकारी नहीं हटे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता, धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बारिश के दौरान हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुध लेने के लिए प्रशासन की ओर से कोई नहीं आया है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि धरना प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाएं भी हैं। मंगलवार रात 12 बजे हमें धरना स्थल से हटा दिया गया। रात भर से खाना नहीं खाया है, आज बारिश में भीग गए हैं और अपनी मांग सरकार तक रख रहे हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे देखते हुए हमें हमारा नियुक्ति पत्र दे। मंगलवार देर रात हटाए जाने के बाद बुधवार सुबह फिर प्रदर्शनकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। एक और प्रदर्शनकारी ने कहा कि पहले भी कई दिनों तक प्रदर्शन कर चुके हैं। कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, बस सरकार भी ध्यान दे और नियुक्ति पत्र जारी करे। बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। कोर्ट के डबल बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी, साथ ही 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बदलापुर कस्बे के एक स्कूल में 2 बच्चियों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति की पुलिस हिरासत की अवधि एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को 26 अगस्त तक बढ़ा दी। आरोपी को बुधवार की सुबह कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच जिले के कल्याण में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने आरोपी को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि शिकायत के अनुसार आरोपी ने स्कूल के शौचालय में दोनों बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया था। वहीं बदलापुर रेलवे स्टेशन पर हुए रेल रोको आंदोलन में शामिल 300 आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, पत्थरबाजी और दंगा फैलाने के प्रयास जैसे गंभीर आरोपों में ये मामले दर्ज किए हैं। इस मामले में 22 आंदोलनकारियों को कल्याण GRP पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आंदोलनकारियों को आज अदालत में पेश किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों को आज कल्याण रेलवे अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आंदोलनकारियों के वकील नैना मराठे ने बताया कि वे जल्द ही जमानत के लिए आवेदन करेंगे।
पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है और आंदोलन में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के शिकागो में हो रहे डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जमकर तारीफ की। ओबामा ने कहा, अमेरिका के नए चैप्टर के लिए तैयार है, हम कमला हैरिस के लिए तैयार हैं। कमला हैरिस भी तैयार है। उन्होंने कहा, दुनिया देख रही है कि नवंबर में होने वाले चुनाव में क्या होगा। देश के अधिकतर लोग उस देश पे नहीं रहना चाहते हैं जो विभाजित हो। हम कुछ अच्छा चाहते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति को चुनने का मौका है जिसने अपना पूरा जीवन लोगों को वही अवसर देने की कोशिश में बिताया है। अमेरिका की अगली राष्ट्रपति कमला हैरिस, मुझे राष्ट्रपति पद के लिए इस पार्टी के नामांकन को स्वीकार करने का सम्मान मिले 16 साल हो चुके हैं। पीछे मुड़कर देखें तो मैं बिना किसी सवाल के कह सकता हूं कि आपके उम्मीदवार के रूप में मेरा पहला बड़ा फैसला मुझे आपका सबसे अच्छा दोस्त बना गया। मैं जो बाइडेन से उपराष्ट्रपति के रूप में मेरे साथ काम करने के लिए कहा रहा था। इतिहास जो बाइडेन को एक बेहतरीन राष्ट्रपति के रूप में याद रखेगा, जिन्होंने बहुत बड़े खतरे के समय लोकतंत्र की रक्षा की। मुझे उन्हें अपना राष्ट्रपति कहने पर गर्व है और उन्हें अपना दोस्त कहने पर और भी ज्यादा गर्व है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार भयावह होती जा रही है। इस रूसी अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन ने 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से पहली बार मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। अधिकारियों ने यह भी कहा कि रूस ने यूक्रेन के सभी ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मॉस्को ने रात भर में यूक्रेन के 45 ड्रोन नष्ट कर दिए। उसने बताया कि 11 ड्रोन मॉस्को क्षेत्र के ऊपर नष्ट किए गए, 23 ड्रोन ब्रयांस्क क्षेत्र, 6 बेलगोरद, 3 कालुक और 2 कुर्स्क क्षेत्र में नष्ट किए गए। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा, ड्रोन के जरिए मॉस्को पर हमला करने की यह अब तक की सबसे बड़ी कोशिशों में से एक थी। उन्होंने कहा कि राजधानी मॉस्को के आसपास बनाई गई मजबूत रक्षा प्रणाली के कारण सभी ड्रोन नष्ट कर दिए गए। रूस के कुछ सोशल मीडिया चैनल पर वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा ड्रोन को नष्ट करते हुए देखा जा सकता है। ब्रयांस्क क्षेत्र के गवर्नर अलेक्जेंडर वोगोमास ने कहा कि उनके क्षेत्र पर बड़ा हमला किया गया, लेकिन 23 ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। होली फेथ पब्लिक स्कूल एंड पीयूसी कॉलेज ऑफ साइंस में सैयद जाफर परवेज अथर इसरो के रिसर्च साइंटिस्ट का सम्मान कार्यक्रम। आंगनवाड़ी केंद्रों की रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी जाएगी, जस्टिस प्रकाश ए बनसोड़े ने कहा। भाजपा मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है, जबकि मैं गरीब, दलित और सामाजिक न्याय का समर्थक हूं, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। बेंगलुरु भारत में गेमिंग और एनिमेशन उद्योग का नेतृत्व करेगा, प्रियांक खरगे ने कहा। भारत बंद के विरोध में जीतन राम मांझी और किरोड़ी लाल मीणा जाने चिराग और मायावती का रुख। मंकी पॉक्स को लेकर सरकार अलर्ट, एम्स दिल्ली ने जारी की एडवाइजरी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।